لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 8B میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم آج کے سبق میں 4 الفاظ سیکھیں گے: ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا اور اولائکا. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ہاذا کی جمع ہے ہاؤلائی اور ذالکا کی جمع ہے اولائکا. ہاذا یہ، ہاؤلائی وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. یاد رہے کہ گرامر کو ہم TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں. TPI کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی جسم کے سارے وجود کا استعمال کرتے ہوئے ہم نہایت آسان طریقے سے گرامر کو پڑھیں گے. تو TPI کیا ہے؟ گویا کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو بھی الفاظ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر وہ حرف ہوگا. اسم، فعل اور حرف. اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن وغیرہ. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اسم کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، یا اس کے اخیر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین آ سکتی ہے جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین. یا اس کے اخیر میں واو نون یا نون بھی زیادہ آ سکتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمین. الف اور لمبی تا بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمات. تو آج کی کلاس میں ہم حروف جر یعنی پریپوزیشن، اس کے بارے میں 3 اہم بات سیکھیں گے. ہم نے پچھلے 3 لیسن میں جو پارٹ B کا حصہ تھا اس میں 9 حروف سیکھے ہیں، جن میں سے 7 حروف جو ہے یہ پریپوزیشن کے ہیں، یہ حروف جر ہیں. لی، من، عن، بی، فی، علا اور الا. اور ہم نے ان کے معنی کو مثالوں سے یاد رکھا. جیسے لی یعنی لیے، مثال کیا تھی؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. من یعنی سے، مثال کیا تھی؟ من الشیطان، شیطان سے. ان یعنی سے، مثال کیا تھی؟ رضی اللہ عنہ. پھر ہم نے بی، فی، علا کو سیکھا اور ان کو بھی مثالوں کے ذریعے سے یاد رکھا. بی یعنی سے، مثال کیا تھی؟ بسم اللہ. فی یعنی میں، مثال کیا تھی؟ فی سبیل اللہ. علا یعنی پر، مثال کیا تھی؟ السلام علیکم. الا یعنی طرف، مثال کیا تھی؟ الیہ راجعون. اب ایک بات آپ جان لیجئے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے آمنتو باللہ میں، یہ بی کیا ہے جی؟ آمنتو باللہ میں جو بی ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف جر ہے. بی کا معنی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سے. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں اللہ پر ایمان لایا. تو بی کا مطلب آپ نے کیا پڑھا؟ سے. کیا بی کا مطلب آپ نے کہیں پر پڑھا ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بی کا مطلب پر آپ کو کہیں ملے گا بھی نہیں. پوری ڈکشنری میں آپ اگر تلاش کر لیں گے کہیں بھی آپ کو بی کا معنی پر نہیں ملے گا. بی کے معنی آپ نے سے پڑھا ہے نا. اچھا، اب ہم انگلش کو دیکھتے ہیں. آئی بلیوڈ ان اللہ.
تو इन का माना क्या है? इनका माना क्या है? मैं या से। तो इनका मतलब है मैं, से नहीं है। जो इन है ये इंग्लिश का प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब होता है मैं, से कभी नहीं आएगा, से कभी नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चला कि हर जुबान का हर्फ जर यानी प्रीपोजिशन अपनी अलग पहचान रखता है। हर जुबान में हर्फ जर अलग होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो अरबी में आपने पढ़ा है उसी माने में उर्दू में उसका तर्जमा हो, या उसी माने में उर्दू में भी हर्फ जर इस्तेमाल हो, यह कोई जरूरी नहीं है। या इंग्लिश में या दूसरी जुबानों में जिस माने में आपने अरबी में पढ़ा है उसी माने में दूसरी जुबानों में उसका तर्जमा हो, यह कोई जरूरी नहीं है। यह है पहली बात। यह है पहली बात। आप देख सकते हैं कि जब ईमान लाने की बात हो तो अरबी में बी का इस्तेमाल हुआ, अंग्रेजी में इनका इस्तेमाल हुआ और उर्दू में पर का इस्तेमाल हुआ। उर्दू में पर का इस्तेमाल हुआ। आप काम पर फोकस कीजिए, काम को देखिए, तो हर्फ जर आपको ऑटोमेटिकली जो है समझ में आ जाएगा। जी, तो आमंतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अब हम इसका उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं, अल्लाह पर ईमान लाया। तो बी का माना आपको अरबी में पर नहीं मिलेगा। जैसे इंग्लिश में आप देखिए आई बिलीव्ड इन अल्लाह, तो इनका माना आपको कहीं भी से नहीं मिलेगा। इनका मतलब या तो मैं के होंगे या अंदर के होंगे। तो पता क्या चला, हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है। यह है पहली बात। अब हम लेते हैं दूसरी बात। कभी हर्फ जर अरबी में होगा, लेकिन जब हम उसका तर्जमा दूसरी जुबानों में करेंगे तो दूसरी जुबानों में हुर्फ जर नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं इग़फिर ली, मुआफ फरमा मुझे, तो ली ये जो है ना ये हुर्फ जर है। ली क्या है? ये हुर्फ जर है। लेकिन आप इंग्लिश में देखिए फॉरगिव मी, ये मी जो है ना ये इंग्लिश का प्रीपोजिशन नहीं, ये इंग्लिश का प्रीपोजिशन नहीं है, हर्फ जर नहीं है। तो अगर अरबी में हर्फ जर होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी जुबानों में भी हर्फ जर आए, आ भी सकता है और नहीं भी। तो ये दो बातें आपने जान ली। एक तो ये कि जिस माने में आपने अरबी में पढ़ा है, अरबी का हर्फ जर पढ़ा है, दूसरी जुबानों में वही उसका तर्जमा हो, यह कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अरबी में कोई प्रीपोजिशन है, हर्फ जर है। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी जुबानों में भी हर्फ जर इस्तेमाल किया जाए उसी मीनिंग्स में, उसी माने में। अब हम लेते हैं तीसरी बात। तो तीसरी बात क्या है? कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होगा मगर दूसरी जुबानों में उसका हर्फ जर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं वरहमनी, रहम फरमा मुझे या मुझ। अब यहां कोई प्रीपोजिशन नहीं है, अरबिक के अंदर कोई जो है हर्फ जर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आप इसका तर्जमा उर्दू में कर रहे हो या इंग्लिश में, इन दोनों में हर्फ जर इस्तेमाल हो रहा है जी। लेकिन आप इसका तर्जमा उर्दू में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, तो यहां हर्फ जर इस्तेमाल हो रहा है। रहम फरमा मुझ पर, ये पर जो है ना उर्दू का हर्फ जर है। और इसी तरह इंग्लिश में
ऑन मी, इसी तरह इंग्लिश में भी ऑन मी, ये ऑन जो है ये इंग्लिश का प्रीपोजिशन है, हर्फ जर है। तो ये तीन बातें हो गई, ये आपको समझ में आई। अब हम लेते हैं चौथी बात, जो बहुत अहम और बहुत जरूरी बात है, जो बिल्कुल जिसका याद रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि हर्फ जर के बदलने से माने बदल जाते हैं। हर्फ जर के बदलने से माने बदल जाते हैं। एक मिसाल लीजिए, जैसे लकड़ी से मारा, ये बड़ी खतरनाक बात है। लकड़ी को मारा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो से मारा और को मारा, यहां हर्फ जर तब्दील हुआ और माना ही इधर का उधर हो गया। इसी तरह इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन। तो चौथी बात क्या है कि प्रीपोजिशन हर्फ जर के बदलने से माने बदल जाते हैं। अब आप इसको अरबी में देखिए। सल्ली के असल माने हैं नमाज के, और इसी से जो है सलात बना है। सल्ली के असल माने हैं नमाज के। लेकिन जैसे हम सूरह कौसर में पढ़ते हैं, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सल्ली के बाद अगर प्रीपोजिशन लाम ज़ेर ली आया तो अब इसका तर्जमा हो रहा है नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। और सेम सल्ली ऐसा ही है दुरूद शरीफ में, सल्ली अला मुहम्मद। अब चूंकि सल्ली के बाद प्रीपोजिशन अला आया है तो यहां माना चेंज हो गया। अब हम तर्जमा कर रहे हैं रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रीपोजिशन के बदलने से, हर्फ जर के बदलने से माने बदल जाते हैं। जैसे सल्ली ली रब्बी का, नमाज पढ़ी अपने रब के लिए, और सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, तो ये चार बातें हैं अहम। पहली बात, हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है। जैसे आमनतु बिल्लाही में अरबी में बा इस्तेमाल हुआ, उर्दू में पर इस्तेमाल हुआ, और इंग्लिश में इन इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, कभी हर्फ जर अरबी में होगा मगर दूसरी जुबानों में नहीं होगा। तीसरी बात, कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होगा मगर दूसरी जुबानों में जरूरी है होगा। और चौथी बात क्या है, हर्फ जर के बदलने से माने बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा, ये से मारा और को मारा, ये से और को, ये जो है उर्दू के प्रीपोजिशन हैं और इनके तब्दील होने से माने चेंज हो गए। जी, अब हम लेते हैं इसका दूसरा पार्ट इस सबक का। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये सब, वो सब। इसी तरह अरबी में ये के लिए हाजा और ये सब के लिए हाउलाई का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो हमने शुरू में देखा। और वो के लिए जालिका और वो सब के लिए उलाइका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जी, तो ये चार अल्फाज हैं, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। कुरान पाक में तकरीबन ये 1000 बार रिपीट हुए हैं। जी, इन चारों अल्फाज को समझते हुए टीपीआई के जरिए से अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। मसलन हाजा और हाउलाई कहते वक्त एक उंगली और 4 उंगलियों से करीब की तरफ इशारा करेंगे। जैसे हाजा या हाउलाई, ये या ये सब। जालिका और उलाइका कहते वक्त एक उंगली और 4 उंगलियों से इशारा होगा, मगर ना दाईं जानिब होगा ना बाईं जानिब होगा, बल्कि दोनों के बीच में होगा। ये आप याद रखेंगे। अब आप तर्जमा करेंगे, हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। एक मरतबा फिर, हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब।
تو हाजा और हाउलाई इन दोनों का इशारा करीब के लिए होता है। जो चीज हमसे करीब है उसके लिए हाजा और हाउलाई का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो चीज हमसे दूर है उसके लिए जालिका और उलाइका के अल्फाज में इशारा किया जाएगा। अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। जी, अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल में, इनको प्रैक्टिस करते हैं। सवाल बनेगा अहाजा मुस्लिम, अलिफ जबर आ या हमजा जबर आ, जो भी आप इसको कहिए, इसका तर्जमा होगा क्या। हाजा यानी ये, मुस्लिम मुसलमान है, तो सवाल क्या बना, अहाजा मुस्लिम, क्या ये मुसलमान है। अब जवाब होगा नअम हाजा मुस्लिम, हाँ ये मुसलमान है। तो इस तरीके से आप जवाब देंगे। तो अब आप जवाब दीजिए, अहाजा मुस्लिम, क्या ये मुसलमान है। नअम हाजा मुस्लिम, हाँ ये मुसलमान है। अहाउलाई मुस्लिमून, क्या ये सब मुसलमान हैं। नअम हाउलाई मुस्लिमून, हाँ ये सब मुसलमान हैं। अजालिका मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। नअम जालिका मुस्लिम, हाँ वो मुसलमान है। अहाउलाई मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं। नअम उलाइका मुस्लिमून, हाँ वो सब जो है मुसलमान हैं। तो आप एक मरतबा अरबी में बगैर तर्जमा के जवाब दीजिए। अहाजा मुस्लिम, नअम हाजा मुस्लिम। अहाउलाई मुस्लिमून, नअम हाउलाई मुस्लिमून। अजालिका मुस्लिम, नअम जालिका मुस्लिम। औलाइका मुस्लिमून, नअम उलाइका मुस्लिमून। जी, अब हम लेते हैं एक और बात। हाजा, ये मुजक्कर के अल्फाज के लिए इशारा किया जाएगा। हाजा के अल्फाज से, हाजा के वर्ड से जो है मुजक्कर जो चीज होगी, आदमी हो या कोई, उसके लिए हाजा का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और मुअन्नस के लिए हाजिही, तो पता ये चला कि हाजा की मुअन्नस है हाजिही। अल्फाज बदला है अरबी में, लेकिन तर्जमा नहीं बदला है। हाजा ये, हाजिही का मतलब भी ये मुजक्कर, हाजिही ये मुअन्नस। इसी तरह तिलका, जालिका की मुअन्नस है तिलका। जालिका वो, तिलका वो, अल्फाज बदले हैं, माना नहीं बदला है। जालिका मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा और तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। तो क्या पता चला, हाजा की मुअन्नस हाजिही और जालिका की मुअन्नस तिलका। इसको आप याद रखेंगे। आज का सबक इतना ही। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।